Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5, continuation of motion chapter. Today we are going to learn how to solve numerical using kinematical equations. These questions are very important, plus we need to know how to implement a particular formula. So first I'll discuss about 3 kinematical equations. So what are the kinematical equations that you can see? So the first kinematical equation is V is equal to U plus AT. Second kinematical equation, it's S is equal to UT plus half AT square. As we did in last class, we derived these equations using graphical method. And the third one is what? V square is equal to U square plus 2AS, or you can show little change in this formula. V square minus U square is equal to 2S. Now we'll see how many quantities we are having in this. So the first quantity which we are having in this is, you can say U is the first quantity, V is the second quantity. You can take now V also first quantity, that's up to you. T is there, A is there, and S is there. What is the V? U. U is the initial velocity. U is initial velocity. So ये initial velocity हो गया. What is V? V is final velocity. V final velocity हो गया. Then what is T? T is time. And what is A? A is acceleration. अच्छा, अभी इस मोशन में हम इमेजिन करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा during these numerical solving session. And what is the S? S is what? Displacement. S is displacement. Okay. So इनके लिए हमें ना यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट है. So what will be the unit for each term? So initial velocity का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. फाइन. फाइनल वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम का यूनिट विल बी सेकेंड. एक्सेलरेशन का यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट विल बी मीटर. एक और पॉइंट है विच वी नीड टू बेसिकली यूज इन दिस केस. आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है. तो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर, लाइक x किलोमीटर पर आवर को you are converting into meter per second, x kilometer per hour. So what will you do? You will multiply x with what? 5 by 18. तो ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में. So this is the way to convert kilometer per hour in terms of meter per second. ये conditions है और these are the values which we need to know. अब हम आ जाते हैं what are we supposed to do while we are solving kinematical equations. So based numerical. So सबसे पहले क्या होता है ना, you ask question to yourself. पहले आपको खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. अच्छा, जब भी मैं ना एक टर्म में यूज करूंगा मेंशन. So is this mention, is that mention and all, in that way if I'm asking question, it's very simple कि आपको करना क्या है कि आपके पास ना दो डिटेल्स होते हैं. एक होता है गिवन एंड सेकंड फाइंड. गिवन इन द सेंस व्हाट एवर क्वांटिटी अवेलेबल फॉर अस, and the second, what are we supposed to find out. So when I'm saying now, is this quantity mentioned in question? So it can be any form. It can be in any form. It can be in terms of given also, or it can be in terms of find out also. तो मतलब find out में भी पूछा, मतलब they have mentioned about that quantity. They have given little importance to that particular quantity. और अगर mentioned नहीं है, मतलब it will be neither in given nor in terms of find out. So उस टर्म में आपको सोचना है. So यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद को पूछना है वो क्या है? इज टाइम मेंशन्ड? इज टाइम मेंशन्ड? तो अब ये क्वेश्चन आप खुद से पूछ रहे हो. फिर उसके बाद क्या करना है आपको? ये क्वेश्चन कब पूछोगे अपने आप से आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो जब आप क्वेश्चन रीड कर लेते हो. क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको गिवन दिया हुआ है, देन दे हैव गिवन फाइंड आउट टर्म. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल सी इज टाइम मेंशन्ड इन क्वेश्चन. सो आपका अगर आंसर होता है यस, तो क्राइटेरिया क्या होगा? आपका आंसर है नो, तो क्राइटेरिया क्या होगा? तो पहले मैं यहां पे ना आंसर नो के लिए लेता हूं और इस साइड में मैं आंसर एस के लिए लेता हूं. ठीक है, मैं नो के लिए क्यों ले रहा हूं आपको धीरे समझ में आ जाएगा. नो, टाइम इज नॉट मेंशन. अगर टाइम मेंशन नहीं है, हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इसमें टाइम मेंशन है, यहां पे टाइम मेंशन है, बट दिस इज द इक्वेशन वेयर टाइम इज नॉट मेंशन. टाइम मेंशन नहीं है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां पे एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2as. हमारे पास एक ही फॉर्मूला है विच वी हैव टू यूज. ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें सिंपल हो गई हमारी. गॉट इट. अब क्या होता है कि अगर टाइम मेंशन है यस, तो ये थोड़ा सा यहां पे क्या होता है पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा.
यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा ऑप्शन होता है, एक तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर टाइम दिया है तो। सेकेंड कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, करेक्ट। बट अभी क्वेश्चन है कि व्हेन आर वी गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन एंड व्हेन आर वी गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, दैट इज अ क्वेश्चन टू आस्क। सो वेरी सिंपल, आपको क्या करना, यहां पे फिर से खुद से क्वेश्चन पूछो, यू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इफ टाइम मेंशन is displacement given or is displacement mentioned, displacement or distance is displacement mentioned, so अगर टाइम मेंशन किया और डिस्प्लेसमेंट भी मेंशन किया और आपका आंसर यस है तो आप डायरेक्टली इस पे जाओगे और आंसर आपका क्या आ रहा है, यस, आपके आंसर में है यस, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विच यू हैव रिटन, करेक्ट। और यहां पे क्या हो गया कि अगर ये वाला है और टाइम इन्होंने दिया हुआ है, but you will ask question to yourself, is final velocity mentioned, is final velocity mentioned, is final velocity mentioned, अगर final velocity mentioned है और आपका आंसर yes है तो you will apply this formula। तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं, just I'll tell you little more। so क्या होता है कि whenever we are solving any numerical based on kinematical equations, तो पहले आपने क्वेश्चन देखा, you will ask whether time is given or not, time is not given, very simple, v square is equal to u square plus 2s, but if time is given then what are we supposed to do, दो इक्वेशंस होते हैं, v is equal to u plus 80 and second s is equal to ut plus half at square। तो अब देखना है is final velocity mentioned in question, final velocity, time और final velocity दिया है तो ये फॉर्मूला, और फाइनल टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो ये फॉर्मूला। बट अगर आप इमेजिन करो ना, यू आर हैविंग ऑल द डिटेल, लाइक आपको टाइम भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला, तो हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। फर्स्ट यू ट्राई टू सिंप्लीफाई विद द फर्स्ट वन, वो आपका बेसिक टास्क होगा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड विल सी कि क्या क्राइटेरिया है इनके। सो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड और एनालाइज। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी क्वेश्चन दिस साइड, यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रेन अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन दैट यू का वैल्यू विल बी व्हाट, 0 एंड आई डोंट नो द यूनिट एंड ऑल। फिर क्या दिया इन्होंने, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, और ये फाइनली ना वेलोसिटी अटेन करता है, कितना वेलोसिटी अटेन करता है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करता है, कितने टाइम में, इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, आप अज्यूम करते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब दीज काइनेमेटिकल इक्वेशंस विल बी यूज्ड। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो क्या फाइंड आउट करना, हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, तो ए इज क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, तो मतलब ये फाइनल वेलोसिटी अटेन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये ट्रेन, मींस एस का वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे ना कि क्या करना है, बराबर। सो फॉर्मूले में देखो ये फर्स्ट पॉइंट, यहां पे हमें सोचना है, सो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज टाइम मेंशन इन क्वेश्चन, तो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है तो एलिमिनेट हो गया। देन वी विल थिंक लिटिल मोर, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वी हैव टू फाइंड आउट एस एंड वी हैव टू फाइंड आउट आइदर वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला और वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। हमको निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी है। देन आई विल आस्क सेकंड क्वेश्चन टू माय सेल्फ, इज फाइनल वेलोसिटी गिवन इन क्वेश्चन, तो यस फाइनल वेलोसिटी गिवन, तो फाइनल वेलोसिटी दिया है और टाइम भी दिया है, इसका मतलब मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। वहां से अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको ऑब्टेन करना तो ये क्या होगा, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, तो फाइनली क्या होगा, हमको एक्सेलरेशन निकालना, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। देखो ये फॉर्मूला हमने ना पहले यूज किया हुआ है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले डेरिवेशन में यूज किया हुआ है, आपको डायरेक्टली भी याद है तो यू कैन राइट इट, दैट्स नॉट एन इशू।
दिस तो आई एम टेलिंग कि ना अगर मुझे समझ के करना है, आई एम थिंकिंग लॉजिकली, तो क्या करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट का, उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में है, मतलब मेंशन है, और दे आस्किंग अबाउट देन टाइम इज गिवन। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कौन सा फॉर्मूला, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होगा सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी अगर है तो आप सेलेक्ट कर लो इस फॉर्मूले को भी, ओके। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। व्हेन वी आर सॉल्विंग, तो सिंपल क्राइटेरिया, आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम दिया है सेकेंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगा, तो इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5/18, तो कितना हो जाएगा 18, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली वैल्यू, तो दिस आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मार्कर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड वी आर गोइंग टू गेट। सो दिस विल बी, वी आर गेटिंग 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे हम पुट करके सॉल्व करते हैं एंड विल सी कि क्या है वैल्यूज। सो फर्स्ट, अगर हम सोल्यूशन में फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, द फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, तो देयरफॉर फर्स्ट एक्सेलरेशन वी आर फाइंडिंग v माइनस u अपॉन t। व्हाट्स द वैल्यू फॉर v, v का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर u, इन बिगिनिंग इट वाज एट रेस्ट, एंड हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, 10 सेकेंड्स। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 20/10 विच इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Why 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव अ इशू ऑफ स्पेस, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हियर। फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप नोटबुक में 1 by 1 ऐसे लिखोगे डाउन, एंड वॉट एवर आई एम राइटिंग यू हैव टू राइट एवरीथिंग यू नीड टू राइट, वॉट एवर द वे आई हैव रिटन, प्लीज डू राइट इन दैट वे ओनली, दैट विल बी बेटर, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। What's the value for u? U will be 0. And what's the value for t? T will be 10 plus 1/2. What's the value for a? A is 2. And what's the value for t? T is given as 10 seconds. So 10 square. So what will happen? This value will turn into 0. ठीक है? 2 will cancel with 2, and that is 100. So 0 plus 100 will turn into what? 100 meter. So you got the answer for the first question. That is acceleration is what, 2 meter per second square. That's the first question. And displacement travel in achieving or acquiring this velocity will be 100 meter. तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतनी वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है, अटेन हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question again very simple, means all the questions are very simple, and these questions are basically type of question which will come in your exam. So, and I'm very sure you people will understand it better way. क्योंकि अगर आप सोचोगे तो definitely you will understand. If you will not think, there can be issue. So, अब question क्या है next one? A car accelerates uniformly from 36 km per hour to 72 km per hour. तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर स्पीड की ये हो गई, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले जो स्पीड था वो कितना था, 36 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। फिर जो नया स्पीड है फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, गॉट इट। अच्छा, और आगे क्या दिया है, टू 150 मीटर डिस्टेंस। इनका जो ये मूवमेंट है कितने दूर तक है, 150 मीटर तक। 150 मीटर डिस्टेंस में क्या होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ 150 मीटर 36 किलोमीटर पर आवर है, बट एट द एंड ऑफ 150 मीटर 72 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मीटर में है, मतलब इनको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 5/18, और ये क्या होगा, 72 इंटू 5/18, तो ये 18 4 जा हो गया और 18 2 जा हो गया। तो फाइनली व्हाट विल बी वैल्यू हो गया, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट्स द फाइनल वेलोसिटी, इट्स 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ इन्होंने, और डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट आर दे आस्किंग, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड में इन्होंने दिया कैलकुलेट एक्सेलरेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सेकंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट गिवन डिस्टेंस, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। अब ये तो आपने जस्ट जनरली क्वेश्चन लिख लिया, नाउ विल थिंक अबाउट इट।
सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दैट विल सी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग द फॉर्मूला, अब इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा है, करेक्ट, बट एक्सेलरेशन पूछने के पहले देखो दे हैव मेंशन अबाउट टाइम. ये सेकंड क्वेश्चन तक नहीं आना है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है उस टाइम पे. हम जब फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने तक टाइम नहीं दिया हुआ है. तो जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो देन व्हाट, और टाइम इज नॉट मेंशन, तो विच फॉर्मूला, देन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, v स्क्वायर, ये फॉर द फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन के लिए होगा. तो आर फॉर्मूला इज v स्क्वायर, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली अरेंज कर ले रहा हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2as. फिर उसमें से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2s. ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, फॉर्मूला. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट टाइम. अब टाइम दो इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है, तो क्या होता है, ये इक्वेशन मोस्टली अवॉइड करते हैं, ये इक्वेशन यूज करना है. तो इसको यूज करने के लिए क्या पूछना पड़ेगा खुद से, इज फाइनल वेलोसिटी मेंशन. तो विल सी इज फाइनल वेलोसिटी मेंशन, वो यस, फाइनल वेलोसिटी मेंशन. तो अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at. गॉट इट. तो अगर इससे आप ना t का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब at यहां पे होगा तो v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा अपॉन 80 में से क्या होगा, a को हम डिनोमिनेटर में लेके चले गए, तो ये क्या होगा, t. ठीक है, इन दैट वे यू कैन गेट द टाइम ऑल्सो. अब सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है. तो व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन, अब देख लेते हैं सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2s. v का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 20 रेज टू 2 माइनस u का वैल्यू कितना है, 10 रेज टू 2 अपॉन 2 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, 150 मीटर. तो हमने लिख लिया यहाँ पे 150 मीटर. तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 हो गया, 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 हो गया, अपॉन ये 2 इंटू 150 कितना होगा, 300. तो फाइनली कितना मिल रहा है आपको, ये 300 अपॉन 300, विच आफ्टर कैंसिलेशन विल गिव यू वैल्यू 1. बट किसका यूनिट है ये, किसका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गॉट इट. अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, टाइम निकालना है. तो टाइम के लिए क्या होगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. व्हाट्स द वैल्यू फॉर v, v का वैल्यू 20 है, u का वैल्यू 10 है, तो 20 माइनस 10 अपॉन व्हाट्स द वैल्यू फॉर a we found ना जस्ट नाउ 1. so this is what 10 upon 1 in this is what 10, and time का यूनिट क्या है, सेकेंड. so it will take 10 seconds to show change in velocity from 36 km per hour to 72 km per hour. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए ना एक और चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कि अगर आपने यहाँ पे ये लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो क्या होता है कि स्पीड इंक्रीज होगा. बट व्हाट इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड अगर आप डिक्रीज होता है तो क्या करना है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है. एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग. If speed is decreasing, we have to take acceleration negative. So we'll see. तो उसके ना कभी कभी होता है रिटार्डेशन, they will mention deceleration, or they will mention acceleration only, and then they are saying applied brake. Speed अगर decrease होगा, velocity decrease होगा, then you have to consider acceleration as a negative sign. Question में दिया हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता. दिया है तो no issue, नहीं दिया है तो we have to take minus sign. So question में क्या है, the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square. Brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square. ब्रेक अप्लाई कर दिया है तो वो एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर दिया तो डिसेलरेशन हो गया या रिटार्डेशन हो गया, दैट वैल्यू विल बी इन माइनस साइन. द नेक्स्ट वन, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन. अभी कार ऐसे जा रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा डेफिनेटली. इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, कार इज टेकिंग 2 seconds, तो टी का वैल्यू 2 seconds. किसके लिए, टू स्टॉप. तो वी का वैल्यू इज व्हाट, 0. है ना, टू स्टॉप में फाइनली इट हैज टू स्टॉप. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो अब इसका ना डिस्टेंस कैलकुलेट करना, मतलब एस इस क्वेश्चन में, ये है फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्या होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाता हूं. ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड वाले पैटर्न में लिखना है हमको.
यू गॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है, एक ही क्वेश्चन दिया इन्होंने, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर फॉर्मूला क्या हो गया, हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब कितना समझ में आ रहा है, टाइम मेंशन किया इन्होंने और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो फॉर्मूला एक ही होगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। एनालाइज क्या करना वो देखो, यहां पे ना एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, दैट्स गुड। टाइम का वैल्यू गिवन, दैट्स अगेन गुड, टाइम का वैल्यू, बट ना u इज नॉट गिवन। If u is not given, without finding u, how are we going to get value for displacement? That's highly this impossible. So अब क्या करना है हमको, we will get value for u. u का वैल्यू कैसे निकालना है, u का वैल्यू का फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन तो आप यूज नहीं कर सकते, अभी टाइम दिया है, टाइम इज गिवन, करेक्ट। टाइम इज गिवन, वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी विल यूज दिस इक्वेशन और वी विल यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है, अब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इस इक्वेशन का ऑप्शन है। तो ये जो है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सेकेंड फ्रेम में, है ना। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या होगा सोल्यूशन का, आपको कहना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वेयर u का वैल्यू क्या है, v माइनस एटी, करेक्ट। ये हमें सॉल्व करना है। तो अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, दैट्स इनफ। सो सोल्यूशन इज व्हाट, द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, u इज इक्वल टू v माइनस एटी। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू क्या है, -6 है, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 2 सेकेंड्स है। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 2 जा 12, ये कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। गॉट इट। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में तो फर्स्ट पार्ट है, बट रूल के हिसाब से हमें सेकेंड पार्ट ही इसको इमेजिन करना पड़ेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होगा, ये हाफ एटी स्क्वायर। गॉट इट। देखते हैं यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमको मिले ना 12, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स, देन ये प्लस है, देन ये हाफ है, a का वैल्यू क्या है -6 क्वेश्चन में गिवन, टाइम का वैल्यू 2 इंटू 2, तो विल सी 12 2 जा कितना होगा 24, ये 2 विल कैंसिल विद 2, 6 2 जा 12, बट दैट विल बी माइनस साइन। तो फाइनली आंसर इज व्हाट, 12 मीटर। सो 12 मीटर के बाद वो कार क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, लिटिल लॉजिक्स नीडेड एंड ऑल, और ये कॉन्सेप्ट ही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। यू कैन सी आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ इन दिस वे ओनली एंड आई एम गेटिंग आंसर्स, ठीक है। सिमिलरली यू पीपल विल ऑल्सो गेट आंसर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ना, वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना बहुत कंपल्सरी होगा, बिकॉज व्हाट विल हैपन, सोल्यूशन यू विल हैव बट you will not come to know about questions. So please solution. So what is happening? In next question, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. So एक train है, चुक 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 is going, correct? So this train is traveling at 90 km per hour. So initial speed velocity हो जाएगा, ये 90 km per hour हो गया, correct? You are converting in terms of meter per second. So 90, अच्छा मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना वो भी देख लेते हैं। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटेल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया आगे, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया 5/18, तो 18 5 जा, तो ये कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या हो गया, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाले -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दे हैव ऑलरेडी टेकन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में लिया तो कोई इशू ही नहीं है। फिर क्या दिया इन्होंने, क्योंकि ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। या स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनली ना ट्रेन को स्टॉप करना है, ठीक है। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब उसके बाद भी ट्रेन कितनी दूर तक चला जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क में, ब्रेक लगाने के बाद भी। गॉट इट। सो अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है, फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, एस ये है फाइंड वाला टर्म, मैंने फाइंड हेडिंग नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब आपको क्या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि ना हम देखते हैं कि टाइम दिया है क्या क्वेश्चन में, इस टाइम मेंशन इन क्वेश्चन, टाइम नहीं दिया कहीं पे, टाइम नहीं दिया, तो वेरी सिंपल ये वाला फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, v² - u², यू को इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू 2as,
हमारा डिटेल क्या है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। गॉट इट। अब लिखते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या मिलेगा हमको, सो इन सोल्यूशन व्हाट डू वी गेट, तो s इज इक्वल टू व्हाट, s is equal to v square minus u square upon what 2a. What's the value for v? v का वैल्यू 0 है तो 0 raised to 2. What's the value for u? u का वैल्यू 25 है तो 25 raised to 2 upon 2 into what's the value for a? minus 5. तो देखो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा 625, करेक्ट, अपॉन 2 5 10 minus 10, ये क्या होगा माइनस 625 डिवाइडेड बाय माइनस 10, cancellation, and finally you will get the displacement as what, 10 से डिवाइड करेंगे ना तो 62.5 मीटर। वो ट्रेन 62.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप हो जाएगा। So as you can see now, whatever questions we solved, we applied these logics only and we got idea which formula we have to implement and all. इतना डिफिकल्ट नहीं है, it's very simple. काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मतलब इट्स अ फन, यू विल ट्राई, यू विल गेट इट, it's very simple numerical. So I hope whatever I explained you people understood, and please do focus on unit, because unit में अगर आप मिस्टेक करते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है in identifying units. कभी कभी क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में नहीं आता है तो यूनिट से आप क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक यूनिट है मीटर पर सेकेंड तो दे हैव गिवन वेलोसिटी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। तो यूनिट पे फोकस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। I hope whatever I explained you people understood properly. Thank you very much.